Hello students, hope you all are fine with your parents. So today I'm your Ritika ma'am, your English teacher is here to do some help in your studies. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से हम घर के बाहर नहीं जा सकते and our school is also closed because of that. So for that we have started online classes for you, giving online education ताकि हम आपके कोर्स को कंप्लीट करा सकें. So today I will explain your English second lesson MCB part so that in this chapter you have to do nothing. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के या सिर्फ मेरी वीडियोस पे आपको केयरफुली सुनना है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ और that's it. So hope you all are ready. Let's begin our today's class. Okay, our second lesson is Rahul decision. This is a story of Rahul. Rahul was among the last to leave the hostel. The board examination was over. He was deep in thought as he boarded the train. He had taken a decision, but he knew his parents would never approve it. राहुल अपने हॉस्टल में एक लास्ट बॉय था जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को ख़त्म करने के बाद वो वापस घर आ रहा था. वो बहुत डीप थॉट में था कि वो जब ट्रेन में बैठा तो वो बहुत ही डीप थॉट में था. ही हैड टेकन अ डिसीजन बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर अप्रूव इट. उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे अपने फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन उसे ये भी बात पता थी कि उसके पेरेंट्स इस डिसीजन पे एग्री नहीं होंगे. He walked home from the station. This gave him time to prepare himself. उसने ये सोचा कि वो स्टेशन से घर तक अब वॉक करके जाएगा ताकि उस टाइम पीरियड में वो ये सोच सकेगा कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे एग्री करा सकता है. His home was a farm some 6 kilometer out of the town. उसका घर उसके फार्म से 6 किलोमीटर दूर था. It was 5 in the evening when a tired and a dusty Rahul finally pushed open the door of the courtyard. Okay, शाम के 5 बज गए थे तब एक राहुल उस टाइम थका हुआ अपने घर पे पहुंचा. His mother stood with her back to the door, busy mixing the evening feed for the cows. When he reached his home, उसने क्या देखा कि उसकी मॉम अब उसके काउस और उसके खेत में जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के लिए फूड प्रिपेयर कर रही हैं. She never turned around till Rahul was right behind her, and then in a minute her eyes filled with tears of gladness. थोड़ी देर बाद उसकी मॉम ने जैसे ही राइट टर्न लिया तो उसने राहुल को देखा और उनकी आईज में टीयर्स फुल हो गए. With gladness you know means खुशी. जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं that means gladness. Oh Rahul, my son, when did you come? मॉम वॉज आस्किंग विथ एक्साइटमेंट. मॉम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने पूछा दैट राहुल तुम कब आए. A little later they were joined by Rahul's father. His lean face flushed with a pleasure. Hello son, he said in a voice that quivered unmistakably. उन्होंने अपने बेटे को देख के बहुत ही सरप्राइजिंगली उससे पूछा हेलो सन तुम कब आए हो. Rahul was quite accustomed to his mother giving vent to her feelings. He knew how to comfort her, but when his father fought back a tide of emotion, things were different. Means after watching Rahul, उन्होंने अपने emotions को control किया और वो उसे comfort feel कराने के लिए उससे बातें करने लगे. Rahul knew how life had treated his father. राहुल को पता था कि उसके फादर उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है और किस तरह से उन्होंने उसे पढ़ाया. He had seen photographs of the army officer who was forced to take premature retirement because he could not bear the strain of 2 wars. राहुल को उसके फादर ने फोटोग्राफ्स दिखाया कि राहुल के फादर पहले एक आर्मी रिटायर्ड थे और उन्होंने उसमें से रिटायरमेंट इसलिए ली बिकॉज उन्हें अपने फैमिली की बहुत केयर थी और उन्होंने 2 वॉर्स के बाद वो इतना डर गए थे कि उनकी फैमिली की केयर कौन करेगा. He knew how all money had gone into their holding. He knew the heartbreaks too, the crops that failed, the money that sank every year.
इट मीन्स ऑल दिस सेंटेंस मीन्स सेम कि राहुल के फादर ने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल फेस किए हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं. Taking a little bit of the man with it too, Rahul met his father with deep sympathy but very few words. He looked away, taking time to recover himself. राहुल अपने फादर को ये सारी चीज़ें बोलते हुए वो देखता रह गया और उसने सोचा कि मैं अपने फादर्स को इस डिफ़िकल्टी से ओवरकम कब कराऊंगा. मैं मीन्स कहने का मतलब ये कि मैं अपने फादर को इस डिफ़िकल्टी से कैसे बाहर निकालूंगा. In half an hour, they were seated around the table, having dinner in the blue enamel plates that had come from the army canteen years ago. आधे घंटे बाद सारी फैमिली साथ में बैठ कर के डिनर करती है with blue enamel plates. It means that plate which his father got from army department. Rahul was preparing the speech of his life. He would begin after dinner. Father, there's something I had like to tell you. Let me say it now. After having a dinner, राहुल ने सोच लिया था कि वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा. That what he would like to do in future. Let me say it now and I will never be able to say it. अभी मुझे आप लोग कह लेने दीजिए वरना मैं बाद में नहीं कह पाऊंगा. Father, I know you want me to do great things, electronic or medicine or maybe a career in the IS. राहुल जानता था कि उसके फादर उससे मे बी डॉक्टर, इंजीनियर और IAS ये सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं. बट देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू एंड दैट इज़ फार्मिंग. राहुल ये बात जानता था कि उसके फादर उसे बहुत बड़े पोस्ट पे देखना चाहते हैं लाइक IAS ऑफिसर और डॉक्टर. बट राहुल की विश कुछ और थी. राहुल वॉन्ट टू बिकम अ फार्मर. Here on this very land, I like farming. वो अपने फादर से अपनी विश को रखता है that he like farming very much. Besides, all you need in order to make a go of things in a tough, reliable hand like me, I'm telling you. Oh mother, don't cry. Surely who want me here? Don't you? ये सारी चीज़ें होने के बाद राहुल अपने फादर से बोलता है कि आई नो आपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं और आप मुझे ये सारे स्ट्रगल्स करते हुए नहीं देखना चाहते हो. और वो अपनी मॉम को भी सेटिस्फाई कराता है कि यू डोंट नीड टू बी क्राई, कि मैं हमेशा आपके ही पास रहूँगा, आप तो यही चाहते थे. एंड सो ही वेंट ऑन एंड ऑन विथ हिमसेल्फ थ्रू आउट द डिनर. हिज मदर सुपर्ब कुकिंग वेंट अननोटिस्ड, सो डिड द टेंस लुक ऑन हिज फादर्स फेस. उसकी मॉम ने ये सारी बातें राहुल के सुनने के बाद उसकी मॉम ने जितना टेस्टी डिनर बनाया था दैट ऑल्सो अननोटिस्ड बाय हिज फादर. द मील वॉज ओवर एट लास्ट. राहुल पुट ऑन द moras in the coats and 3 of them sat down. The second ticked by. Away in the distance someone tooted a horn. Rahul drew a deep breath and so did his father. But it was the latter who spoke first. Rahul, I have something to say you. And to Rahul, the words sounded very familiar. राहुल के फादर के पास भी बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, उसे समझाने के लिए दैट प्लीज डोंट गो इन दिस फील्ड मीन्स फार्मिंग, बिकॉज इन लाइफ देयर आर मेनी field there are many streams which he can go in and succeeded in future. There was a pause and then his father went on again as if unburdening himself of a speech carefully rehearsed. Rahul, it's time you think seriously about your future. अब राहुल के फादर सीरियस थे और उन्होंने बोला that राहुल, it's time to become a serious और अपने decisions एकदम सीरियसली लेना दैट व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर. यू हैव सो मेनी करियर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. तुम्हारे पास लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट उन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शंस ओनली यू हैव टू चूज इट. यू कुड बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और यू कुड सिट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तुम या तो डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हो. विच शैल इट बी? राहुल सेड इन अ क्रॉकी वॉइस. Which do you want it to be? राहुल इतनी सारी बातें होने के बाद now he is angry. वो अपनी क्रूक वॉइस में बोलता है that which do you want it to be? आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? Okay. His father was caught in an unguarded movement. उसके फादर समझ जाते हैं that राहुल don't want to listen my words. The words came trembling out. मेरे words उसे बहुत ट्रबल कर रहे हैं.
We didn't want to influence you in any way, son. That's why we have always kept it a secret. But your mother and I would be the happiest if you could join us here on the farm. राहुल के फादर बोलते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम यही चाहते ही थे, इसलिए हम लोगों ने ये बात सीक्रेट रखी कि तुम फ्यूचर में तुम्हें कुछ हर्ट ना हो, ये हमारी बातें हर्ट ना हो कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, इसलिए हम तो पहले से ही चाहते थे कि तुम फार्मिंग ही ज्वाइन करो, दैट यू वांट टू बिकम अ फार्मर, सो यू विल, आप बन सकते हो. I mean, it's a clean, healthy world life, wonderful life away from all the noise and smoke of cities. उसके फादर उसे समझाते हैं कि बाकी सारे करियर ऑप्शन से फार्मर इज द बेस्ट ऑप्शन विच यू हैव चूजन फॉर योर करियर. फार्मर इसलिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज उसकी जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही वंडरफुल होती है. वो स्मोकी सिटीज, नॉइसी पॉल्यूशन, इन सब से बहुत दूर एक क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट में तुम अपने काम को कर सकते हो. एंड देयर इज सो मच दैट वी कुड डू टुगेदर, और यही एक काम है जो हम सब मिलकर साथ में कर सकते हैं. राहुल डिड नॉट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग फ्रॉम हिज फैमिली. ये सारी बातें सुनने के बाद राहुल को पता नहीं था कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करे. देयर वेयर टीयर्स इन हिज आईज एंड फॉर वंस ही डिड नॉट केयर इफ अदर्स सॉ देम. इसके बाद राहुल की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सका और अपने फैमिली के साथ हैप्पीली रहने लगा. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इससे आपको ये सीख मिलती है दैट ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. जो आपका दिल कहता है आप वही काम करो, बट चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमेशा अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेके ही आगे फ्यूचर में काम करना चाहिए, बिकॉज हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए सजेस्ट करेंगे वो हमारे लिए हमेशा बेटर होगा. सो बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी.